Okay, so hello everyone. Welcome back to another session of the demo lectures that you are supposed that we are conducting from coaching Mars Udal of Science Institute, and I hope you have attended yesterday's demo lectures carried out by Dr. Sri Mehotri, Sandeep sir, and Vijay sir. So, how did you find the particular lectures? So, Kanisha, Kashika, and Rahul, you both have registered with us already, right? So, I think Sri Sir's lectures was very interesting for all of you, right? So, already in one demo lecture itself, he has covered a whole bit of work on Vesper theory. That's a whole one of the major subtopics in the topic of chemical bonding. So part of which will also is supposed to be taken up. So Vesper theory is one of the subtopics of chemical bonding in the syllabus. Okay, uh, so yesterday we had quite a bit of information in a short bit of time. So we had three classes back to back running, 1.5 hours each. So we thought that so much of information in a short given time will be too much for all of you. So we have cut down on the number of lectures for that was scheduled for today. So we have rescheduled it, and today specifically, then I have redesigned this particular lecture to be in a form of interactive one, so that we give more information of what type of course we are offering and other things, rather than going into in-depth study for the demo part. So when we're starting the regular batch, on Saturday and Sunday, we'll start the regular batches. There, each of the subtopics based on the syllabus, the respective faculty will be carrying forward, and it will be dealt in very deeply every subtopic that's given there. So yesterday in the WhatsApp group, Sandeep sir has already shared the syllabus of JAM and the exam pattern PDF. He also discussed in his video lecture. So you might have got a fair bit of idea what basically the exam of IT Jam holds on. Okay, so today let me just carry forward in the same vein. Some of the lecture will have in dual language. So if any one of you is uncomfortable with Hindi, just inform me, because we'll also in between talk in Hindi and English combined, so that it is easy for most of the people. Most of you are from northern India, so Hindi and English combined together will be a better option for us. So currently I am only talking in English, but I'll look forward, and in between I'll also speak up in Hindi and English combined together. Okay, I hope that is okay. You can unmute yourself in between. You can talk to me in this session, in forthcoming sessions also. If you have any query, anything, so before that, let me just introduce myself. I am Dr. Rajiv Kumar, and I have done my PhD from Indian Institute of Science, Bangalore. Last year, I completed my PhD, and this year I'm working as a postdoctoral fellow. And I hope all the other faculties they have also introduced themselves. So let me just share you one of the portions of the slides that I have thinking to share with you some of the important information that we are having. Okay, so I hope you can see the screen now clearly. Okay, so I have okay, so today first of all let me talk about what we are basically offering in this particular course. IIT जैम का ये जो कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा आप लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे. तो आप लोग कोई भी क्वेरी हो, यू कैन इन बिटवीन स्टॉप मी, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली. ठीक है, सारा क्वेरी जो भी है इस पर्टिकुलर कोर्स से, इस पर्टिकुलर एग्जाम से आपसे रिलेटेड, अभी पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से. कई कई चीज़ें होती है, जैसे when we were in our BSc level. So I've completed my BSc and MSc from Banaras Hindu University. So that was in 2014. I completed my MSc, and Sirish was your batchmate. Yesterday you have attended his class in the graduation, and
So we'll have some fair bit of information for the our institute first, and then forthcoming we'll discuss about the exam pattern a little bit. Then we'll move forward to the introductory part of the subtopic that we're supposed to cover up for the demo part. Okay, and the major portion, whatever we are showing in the demo lectures, इसका जो मेन इससे भी ज़्यादा इन डेप्थ हम लोग एक एक सब टॉपिक को रेगुलर क्लास में अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर सबके साथ अच्छे से करेंगे। तो अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी आप लोग को एसेंस देने के लिए कि हम लोग ऑफर क्या कर रहे हैं ये आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। और इस एग्जाम, व्हाई दिस एग्जाम इज इम्पोर्टेंट एवरीथिंग। सो आजकल ये पर्टिकुलर इंटरेक्टिव सेशन जो हम वी हेल्ड कर रहे हैं, इट्स मोर ऑफ अ कैजुअल और फ्रेंडली नेचर है, ठीक है। डोंट वी डोंट वांट टू ओवरबर्डन यू विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन करेंटली इमीडिएटली। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इंस्टीट्यूट है महर्षि realm of science. We have organized this particular thing. So all our faculty members are PhD holders from different top universities of India. So myself, I am from ISC Bangalore, and my other colleagues, Srish, Dr. Tiwari, Sandeep Sharma, they have all completed. Everyone has a PhD degree. So this is the only institute offering in India that is currently working on not only IIT JEE, IIT JAM, and all any of the facilities. You won't find the complete faculty list who have the PhDs, or they're all doctorates. Okay, so this will be quite a benchmark for you in terms of quality. जो आपको एजुकेशनल टेक्निकल डिटेल्स और जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे वो basically we have all gone through this phase that you are currently in the graduation graduation part, entrance exam. Sorry, I thought it a little weak. सो ये जो आप फेज आप अभी गुजर रहे हैं बीएससी टाइम पे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें आप लोग रिस्पेक्टिव ईयर्स में है, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड वी हैव गॉन थ्रू दिस सो सेम स्ट्रगल जो कुछ भी आप लोग करेंटली फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग अभी थोड़ा ज़्यादा फेस कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण आप लोग रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही है। सो वो जो एस्पेक्ट जो आप मिस कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लास में आपको बीएससी में कई सारे, जैसे बीएचयू में अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं स्टार्ट हुई है ग्रेजुएशन के लिए, मे बी डीयू में और अदर जेएनयू इन सब में थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस करके कुछ पोर्शन सिलेबस वर्कआउट कर रहे हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी कुछ इट वाज ऑलरेडी इनसफिशिएंट, जो आपके बीएससी का सिलेबस है स्टैंडर्ड 11 12 में एनसीईआरटी में जो रिलेवेंट है, वो this is not exactly enough to qualify a very tough exam, just like IIT JAM is considered one of the tough exams in India. IIT JEE एक उसमें से यूपीएससी एग्जाम्स का कंसिडर किया, TIFR का एग्जाम एक काफी टफ होता है। तो उसी तरह ये IIT JAM का भी एग्जाम इट्स नॉट इजी टू क्वालिफाई, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं और उसमें से सिलेक्टेड फ्यू भी होता है। उसका प्लस स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल आपको टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, दैट इज रियली रियली थॉट प्रोवोकिंग। खासकर इससे भी ज़्यादा एक टफ एग्जाम माना जाता है TIFR का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का, उनका अपना एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं। बट लेट अस जस्ट मूव फॉरवर्ड स्लोली, एक एक करके विल डिस्कस अबाउट दिस अ लिटिल बिट, सो आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया पहले से होगा कि ये के एग्जाम्स होते क्या है। लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर मैं टचअप करूँगा, तो आपको इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया हो जाएगा। So we have our own Facebook group here. Okay, so so you can visit our Facebook page on this the link there. You can just we also share a lot of quizzes and everything on a daily basis वहाँ पर। तो बेसिकली लेट अस स्टार्ट। जो हम पर्टिकुलर कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो है IIT JAM, टारगेट IIT JAM 2021 के लिए। बट इवन फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। तो आप जो भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी अगर आप इसको सो अगर आप ये कोर्स अटेंड कर रही है पर्टिकुलर बैच से ही, तो यू विल गेट एटलीस्ट 2 years ऑफ टाइम टू प्रिपेयर वेरी वेल। सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी इट इज क्वाइट टफ बिकॉज हाफ ऑफ द थर्ड ईयर सिलेबस कवर अप हो चुका है। बट आर एम हियर विल, जो कुछ भी आपका मिसिंग है अभी तक इस साल का, काफी कुछ मिस हो गया पोर्शन, हम उसको कवर अप कर आपको इससे आपके
यूनिवर्सिटी लेवल के जो पोर्शन उससे भी कई गुना एडवांस लेवल पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड आपको ट्रेन कर कर इतने प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करवा लेंगे कि जब भी आईटी जैम का एग्जाम आप बैठोगे उसमें देने के लिए, तो एटलीस्ट वी अश्योर दैट आप लोग इतना कैपेबल हो जाएंगे कि एक अच्छा रैंक उसमें ले आएंगे। तो आईआईटी जैम इज अ वेल नोन एग्जाम जो भी बीएससी अटेंड करते हैं, लेकिन कई सारे जो यूनिवर्सिटीज है उनमें ये इन्फॉर्मेशन आता नहीं है। मैक्सिमम लोग जैसे जब हम लोग बीएचयू में थे बीएससी के टाइम में, तब वी डिडंट हैव दैट मच इन्फॉर्मेशन, तो बट वी got to know about it in the final year and we appeared in the exam and we were in among like Shrish and myself and Dr. Tiwari, we were among the top ones in the IT jam exams in that year also. So but we got to know that lot of people do not actually have the information इसके बारे में कि होता है क्या है एग्जाम ये। तो ये आईआईटी जैम का एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जाम है आईआईटी में एंट्रेंस के लिए, जो आप एमएससी लेवल में यानी आप बीएससी में है तो एमएससी में ज्वाइन करने के लिए ये बेसिकली पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। तो ये आईआईटी जैम का एग्जाम को अपियर करते हुए व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम को क्वालिफाई कर कर ही आप कई सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जो आईआईटीज होते हैं, आईएससी बैंगलोर है, एनआईटीज है और कई सारी आईजर्स एंड आई थिंक वहाँ पर आपको एडमिशन इस पर्टिकुलर सिंगल एग्जाम के पर्टिकुलर में आपको मिलता है। इसके अलावा कई सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना इंडिविजुअल एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, जैसे बीएचयू का अपना एग्जाम होता है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस डीयू का एग्जाम होता है, जेएनयू का होता है, टीएफआर का होता है, तो सेपरेट एग्जाम्स होते हैं कई सारे, और एक कॉमन एग्जाम अगर आईआईटी जैम का ले तो इससे आप मोस्ट ऑफ द टॉप रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से वहाँ पर ज्वाइनिंग का आपको और इसमें अच्छा रैंक मिल जाएगा, तो इजीली डायरेक्टली आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है एंड पर्टिकुलर व्हाट वी आर ऑफरिंग करेंटली फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इज फॉर आईआईटी जैम केमिस्ट्री पोर्शन। सो in future IIT JAM for biotechnology and physics and other things we'll be doing, but currently we only focus on chemistry because most of our whatever faculties we are right now are chemistry PhD holders. Okay, so the institutes where you will be offered this particular PG course based on IIT JAM, there are a whole lot of, in fact all of the IITs, there are 23 IITs in India. तो सबसे टॉप मोस्ट अभी है आपका आईएससी बैंगलोर, जहाँ से मैंने अपनी पीएचडी डिग्री हासिल की है। तो ये अभी इंडिया की तरफ से वर्ल्ड के जो टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, टाइम्स हायर एजुकेशन यूएस रैंकिंग होती है, उसमें आईएससी बैंगलोर कंसिस्टेंटली टॉप पे रहता है। तो दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट व्हिच इज विद इन द 300 टू 350 रैंक ब्रैकेट। इसके बाद यू हैव आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, दे कंसिस्टेंटली नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आईआईटीज आती हैं। तो रिसर्च के मामले में आईआईसी इज way better and IIT Bombay is also considered at par. तो ये तीन चार इंस्टीट्यूट्स अभी करेंटली these are the top ones. Apart from this IIT JAMS के थ्रू आप IIT कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, BHU, IISc धनबाद, IIT गुवाहाटी, ये सब जो ओल्ड वाले IITs थे, पहले 7 IITs थे, फिर IISc और IISM में जोड़कर 9 हो गए थे। फिर कुछ रिसेंट ईयर्स में they have got whole lot of different IITs now. IIT धरवाड़ है, मंडी, रुड़की, गोवा, there are whole 23 total IITs now under the code of IITs. So so based on the ranking that you get in your IIT JAM, वहाँ से आपको ऑफर लेटर आएगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, वहाँ इंटरव्यू होता है sometimes, but this year I probably they might skip the interview process and directly we might get the admission on based on your ranking. So apart from this, IIT JAM can also be very useful to get in admission in IISER, Indian Institute of Science and Education. ये भी काफी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ योर कोर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। इनकी जो ऑफरिंग है कंपेयर टू योर यूनिवर्सिटी लेवल पीजी लाइक बीएचयू एंड डीयू, इनकी जो ऑफरिंग है पोस्ट ग्रेजुएट एंड अदर थिंग्स में, वो एक अलग तरीका है। इनका जो पैटर्न है वो यूएस बेस्ड जो सिलेबस है उसके ऊपर भी आईजर्स, नाइजर्स और एनआईटी। सो बेसिकली द टॉप प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी, सॉरी हाँ बोलो सर। आईआईटी दिल्ली सबसे प्रायर नहीं है, आईआईटी बॉम्बे है। ये रैंकिंग एग्जैक्टली उस ऑर्डर में मैंने नहीं लिखा है कि हम इस ब्रैकेट में करें कि ये हमारे बेस्ट अभी करेंटली जो वर्क करें, सारे आप इक्वली मान के चलो।
ठीक है। आईआईटी बॉम्बे दिल्ली ऊपर नीचे होते रहता है हर साल, जब अच्छा। होती कभी दिल्ली आ जाएगा ऊपर कभी बॉम्बे, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली आईआईसी तो टॉप पे ही रह रहा है, ठीक है। समटाइम्स इन द प्रीवियस 3-4 when we were in our BSc, IIT कानपुर was among the top ones, वो बहुत ऊपर था। लेकिन करेंटली थोड़ा सा उसका डाउन हो गया रेपुटेशन खड़गपुर का भी। तो ये बेसिकली आपको आईआईटी, बट मोर और लेस आईआईटी तो आईआईटी है, उसका अगर टैग लग गया तो बहुत रेपुटेशन है इस चीज़ का, बहुत ही गिने चुने लोग को ये आपको ये मिलता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो सर बोलो बोलो, सुन रहे। सर इन सब इंस्टीट्यूशन में क्या हमें मतलब हमारा स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए वो लोग इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं हमें, मतलब हाँ हमें क्या स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिलता है? क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको बाहर में जाके अपना खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है, एज यू नो। बिल्कुल। मतलब होता है, कुछ प्रॉब्लम तो हाँ वो होता है ये सबके, इस तो बात पे इकोनॉमिकल भी कंडीशन। मैं डिस्कस करूंगा, मैं उसके लिए भी मैं कुछ है, मैं जस्ट कुछ 2-3 मिनट का टाइम था, उसके लिए डिस्कशन है मेरे पास। सब कुछ मैंने यहाँ स्टोर अप, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर इंटरेक्टिव जानबूझ के रखा है कि जो भी आपके डाउट्स है वो पहले मैं क्लियर कर दूँ, सिलेबस तो उसके बाद हम लोग ऑफर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आईआईटी जैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एमएससी आप लोग हाई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करने की आपकी इच्छा है, जो आप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU जेएनयू इस तरह की यूनिवर्सिटीज, इनके अलावा इनसे ऊपर आप अगर बढ़कर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, और फर्दर अगर इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं रिसर्च की और पीएचडी में, तो दीज आर द योर बेस्ट ऑफरिंग्स करेंटली इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा यस देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, बट वहाँ फिर खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि इट्स ओनली फ्यू पीपल कैन वर्क इट आउट। उसके लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, वहाँ से फंडिंग मिलेगी, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे फॉरेन में। तो but our postgraduate up to the postgraduate research field, we have sufficiently very good institutes, top रिसर्च की फील्ड में भी, और योर ऑफरिंग जो सब्जेक्ट मैटर ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, वो हमें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बराबर में हम ऑफर करते हैं। जैसे आईआईसी है, आईआईटी बॉम्बे, ये सब टॉप, और आईआईटी मद्रास करेंटली बहुत अच्छा है, आईआईटी दिल्ली। तो ये चार आपको आपका एम ये होना चाहिए कि हम इन चार में से किसी में आप क्रैक करें, ठीक है। तो लेटेस्ट और बाकी, लेकिन ये भी है कि अगर आपकी रैंकिंग थोड़ी कम आ गई बाय चांस अनफॉर्चुनेटली, तो अगर आपको लोअर आईआईटी भी मिल रहा है, सो डोंट हेजिटेट, यू टेक दैट अप, बिकॉज वहाँ भी कई सारे ऑफरिंग है। वो उस रैंकिंग में फिर भी आपको एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कई गुना ऊपर उसको डील करेगा। तो ये सब हम इंफॉर्मेशन जब हम रेगुलर बैच चलाएंगे और आपकी क्वालिफिकेशंस आप एग्जाम पे बैठोगे, तो रिजल्ट आने के बीच में हम वहाँ पर आप लोग के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे हम लोग सब लोग कि व्हाट इज द बेस्ट वे आउट फॉर योरसेल्फ आपके बेस्ड ऑन रिजल्ट एंड आई थिंक सो दिस विल बी फोर्थ कमिंग, ये फ्यूचर की बात है। तो ये रही स्कॉलरशिप की बात राजिदा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप यस, बट इट्स नॉट ऑफर्ड बाय ऑल द आईआईटीज, ठीक है। कुछ गिने चुने ही आईआईटीज ऑफर करते हैं स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन आईआईटी जैम, और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज तो ये भी नहीं करती है, तो इसीलिए ये आईआईटी जैम ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आईआईसी का एग्जांपल देता हूँ। आईआईसी में हमारा एक यही इसी आईआईटी जैम को लेते हुए नॉट ओनली एमएससी बट इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कई सारे आईआईटीज में भी है। तो होता क्या है कि एमएससी 2 साल का कन्वेंशनली होता है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर आप फर्दर पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं जो रिसर्च फील्ड है, तो उसमें अगर सिंगल एमएससी पास किया, फिर आप सीएसआईआर नेट देंगे या उस पर्टिकुलर स्टेट का आप पीएचडी लेवल का एग्जाम देंगे, तब फिर क्वालिफाई करके फिर आप इनमें इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आसिफ की बात करूँ, तो मैं बीएचयू में एमएससी कंप्लीट कर 2 साल, फिर आई गॉट अ चांस, आई क्वालिफाइड इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, बट आई हैड टू बीएससी के बाद मुझे मैंने क्वालिफाई किया था, और आई हैड गॉट अ कॉल फ्रॉम आईआईसी, बट एट दैट टाइम देयर वाज decision, we had to make a decision between joining MSc because dates clash कर रही थी, उसकी इंटरव्यू डेट और इसकी ज्वाइनिंग डेट, काउंसलिंग की डेट फॉर BHU। तो उससे मेरे हाथ में उस समय ऑलरेडी आई हैड MSc थिंग, सो आई जॉइन BHU एट दैट टाइम। लेटर 2 साल बाद मैंने CSIR नेट हाई रैंक से क्वालिफाई किया, तो देन वहाँ से इंटरव्यू देकर मैं आई जॉइन द PhD। सो दैट्स अ कन्वेंशनल फील्ड, 2 + 5 years लेके 7 साल लग गया। But when you join the integrated PhD, you already get some scholarship in the MSc,
तो 2 साल आपको MSc लेवल पे स्कॉलरशिप मिलेगी, विच इज अराउंड 10-12,000 पर मंथ, ठीक है। और नॉर्मल MSc करते हैं तो उसमें तो आपको फीस देना पड़ता है 2,000 समथिंग, और आपका मंथली खर्चा जो निकलता है हॉस्टल का वो। तो उस हिसाब से ये इंटीग्रेटेड MSc PhD इज वेरी लुक्रेटिव थिंग कि आपको MSc में भी ऑफर हो रहा है। और साथ में ये इंस्टेड ऑफ 5 years दिस कम्स डाउन टू अ फ्यू years, आप बचा सकते हैं, 3 साल में PhD हो सकता है अगर आप इंटीग्रेटेड MSc PhD ज्वाइन करें, टोटल 5 years इंस्टेड ऑफ 7 जो कन्वेंशन लगता है। PhD में क्या होता है कि आपको JRF अभी जो करेंटली हर साल स्कॉलरशिप हर कुछ सालों में स्कॉलरशिप बढ़ाई जाती है। तो अभी करेंटली 31,000 मिलता है हर मंथ JRF 2 साल फर्स्ट 2 years ऑफ PhD। देन फर्दर जो 3 years के लिए कहा जाता है एटलीस्ट, तो 3 years यू गेट 35,000 पर मंथ, ओके। तो in case of ISC what you get in the first year, तो integrated MSc is like a normal conventional semester system होता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ योर एग्जाम्स सेमेस्टर सिस्टम आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होता है रिसर्च बेस्ड। तो उसी समय आप एक रिसर्च लैब ज्वाइन कर लेते हैं डायरेक्टली, तो आपका 1 साल का जो बचत हो जाता है वहीं पर, ठीक है। तो क्योंकि जब भी कोई नया PhD ज्वाइन करता है उसको 1-1.5 साल लग ही जाता है कुछ नया चीज़ सीखने के लिए, क्योंकि आपको वो सब MSc में नहीं बताया जाता। तो इंटीग्रेटेड PhD वालों को लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि आप रिसर्च फील्ड में इंडिया को काफ़ी ज़रूरत है रिसर्चर्स की, लेकिन ऑलरेडी ये स्टाइपेंड उस हिसाब से फॉरेन के हिसाब से फिर भी कम है, ठीक है। बट लेट अस जस्ट टॉक अबाउट योर इमीडिएट कंसर्न जो हमारा MSc PG एटलीस्ट, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि MSc PhD करना है या खाली MSc करना है, ये बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई सारे लोग इतनी लंबे टाइम के लिए सर फिर लोग सर हाँ बोलो। स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड MSc ही क्यों नहीं करते अगर ये इतनी बेनिफिशियल है? तो देखो कई लोगों का आपकी गोल जो होती है, कई लोग चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर कर ही गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, ठीक है। तो उनके लिए ग्रेजुएशन सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे आप SSC हो गया, UPSC हो गया, ये सब एग्जाम सब ग्रेजुएशन बेस्ड, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो ग्रेजुएशन मांगता है, तो सफिशिएंट है। तो आपको अपना फ्यूचर डिटरमाइन करते हुए देखना है कि आप कहाँ अपने आप को पोजिशन चाहते हैं। MSc करने के बाद यू कैन ज्वाइन इन, आप ऑब्वियसली ये ग्रेजुएशन लेवल वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट तो करती हैं, तो उन एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं। लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी एक बहुत एक टैग है, कई बहुत कम लोग ही ऐसे ग्रेजुएशन भी कम लोग करते हैं, MSc उससे कम करते हैं और PhD उससे भी कम करते हैं। तो आप गिने चुने लोगों के कैटेगरी में आ जाते हैं जब आप एक मास्टर्स डिग्री होल्डर हो जाते हैं, और ओनली अ फ्यू परसेंटेज आर ऑलरेडी इतने साल, क्योंकि हमें बहुत लंबा टाइम लगता है PhD करने के लिए, ठीक है। और इस बीच कई लोग ऐसा होता है, देखो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि वो जो टाइम आप PhD में ये रिसर्च में डेवलप करें एडिशनल डिग्री लेने के लिए, जब तक PhD आपको मिलेगा ना तब तक आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो यू रिक्वायर PhD इज अ मस्ट, ठीक है। डॉक्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बाद में प्रोफेसर उसमें कई साल बाद बनते हैं। ये एक लंबा फील्ड है रिसर्च वाला फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी किसी जॉब में जाना है यानी किस कंपनी में, तो एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री देखो है, ठीक है। अच्छी गवर्नमेंट PSU में पब्लिक सर्विस यूनिट होती है, ठीक है, तो उन समय मास्टर्स चाहिए। तो यू हैव टू जज कि आपको क्या करना है। प्लस अगर बाई चांस अगर आपको इंटीग्रेटेड PhD आपका 1 साल या 2 साल बच जाता है, ये है। और प्लस ये बेनिफिट आपको ये एडिशनल स्कॉलरशिप की होती है, ठीक है। और नॉर्मल PhD में वही 2 years आपका MSc लग जाएगा एंड मिनिमम 5 years लगेगा PhD में ऑन एवरेज, ठीक है। पहले 3 साल था, 5 हो गया, और कुछ साल पहले तक इवन 6-7 years 12 years भी लोग लगा देते थे PhD में, वो होता नहीं था कुछ, ठीक है। तो ये तो अलग बात है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज योर फाइनल गोल। आप रिसर्च एरिया में जाते, देश को जरूरत है एक्चुअली रिसर्चर्स की। देखो आप कोरोना सिचुएशन देख लो, और दवाइयाँ नहीं बन रही है, इतने दुनिया में लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गिने चुने रिसर्चर्स ही नहीं है, ठीक है। दुनिया भर में रिसर्चर्स की कमी है। तो ये जहाँ पर हमें साइंस और इनोवेशन चाहिए, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सारा चीज़ चाइना से आ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर का, गेम्स एप्स जो भी अभी हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे, तो ये चीज़ कौन बनाता है? ये साइंटिस्ट बनाते हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, जितने फाइटर प्लेन्स आते हैं सब फॉरेन से आ रहा है। इंडिया में जो गिने चुने है वो भी कई साल DRDO है, HAL है, ये लगाते हैं इतना टाइम। अब उनके पास साइंटिस्ट लेवल गिने चुने लोग जाते हैं, और वो भी फिर एकेडमिक्स में चले जाते हैं। कुछ लोग
साइंटिस्ट पोजीशन जाते हैं, कुछ एकेडमिक से आते हैं आफ्टर योर पीएचडी। यहाँ भी कई सारे हैं। ये आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हम लोग बाद में ये वी कैन वर्क इट आउट, ये आपके लेकिन मिनिमम एमएससी तो करना ही है ना। तो ये आप चॉइस है आपके ऊपर, आप कन्वेंशनल वे से तरीके से जाएंगे या स्टेप बाय स्टेप यू टेक शॉर्टकट, और मतलब जहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है वो लेंगे। अब ये तो आईआईसी की बात हुई। आईआईटी बॉम्बे में भी और इसी तरह कई सारे अदर आईआईटीज में भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा ओल्ड स्लाइड है, तो इसमें क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि एमएससी पीएचडी में 28,000 25,000 पहले हुआ करता है जेआरएफ एसआरएफ में, तो दे हैव इंक्रीज्ड दैट। सो इवन they apart from IIT JAM के conventional scholarship they give certain tuition fee फ्री कर देते हैं, कुछ पॉकेट अलाउंस देते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ जो कैटेगरी वाइज में भी दे गिव समथिंग, ठीक है। एमएससी पीएचडी में आईआईटी बॉम्बे में भी दे आल्सो गिव सर्टेन अमाउंट। तो ये सब हर आईआईटी या हर सबका अलग अलग रहता है। आईआईसी में थोड़ा ज़्यादा है, आईआईटी खास आईआईसी में रिसर्च इन्वायरमेंट और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। उसी तरह कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी अच्छा है। तो इस पर्टिकुलर थिंग में सबका जो स्कॉलरशिप लेवल है सब अलग अलग अपने हिसाब से देते हैं। कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ देते हैं। तो अदर आपके जो है फॉर एग्जांपल्स आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी गांधीनगर है, अदर थिंग्स दे आल्सो गिव, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर थिंग में अगर आपको चाहिए फर्दर तो वी कैन शेयर इट अप लेटर, ठीक है। तो बट आपकी इन्फॉर्मेशन में यू हैव टू डिटरमाइन कि व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट बेसिकली। कई सारे फैमिलीज well to do है, so they don't require कि but for pocket allowance स्कॉलरशिप मिल रही है तो क्या हर्ज है, ठीक है। तो वो एडिशनल इनफैक्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, घर से खर्चा कम मिलेगा, आप खुद पे निर्भर हो जाएंगे, यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट लाइक दिस, ओके। तो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंस, ठीक है, फॉर बीएससी लेवल स्टूडेंट्स। और कई लोगों को तो ये पता भी नहीं कि एग्जाम होता भी है, ठीक है। कुछ अच्छे जगह अच्छे इंस्टीट्यूशंस में लोग इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि एग्जाम दिया जाता है। ज़्यादातर लोग स्टैंडर्ड 12 11 तक में आता है, आईआईटी जेई जानते हैं, नीट जानते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, इधर जाते हैं। लेकिन जो लोग फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उनके लिए ये एग्जाम आ जाता है जी, उनका आईआईटी जाने का ड्रीम ये स्टिल इंटैक्ट रहता है। कई सारे अदर वेज है जो आईआईटी में जा सकते हैं। इसके बाद एक फर्दर एग्जाम आप दे सकते हो, डीएसटी इंस्पायर का एक एग्जामिनेशन होता है, केवीपीवाई एग्जामिनेशन होता है, वो मैं डिस्कस करूँ उसके जरिए में, ठीक है। तो आईआईटी जैम जो है, जो आने वाले एग्जाम है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स। तो इसके लिए सिलेबस और अदर थिंग्स है, वील डिस्कस लेटेस्ट बी। तो लास्ट कल संदीप सर ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था आपको सिलेबस एंड आई। तो बेसिकली तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि मोर लेस यू ऑलरेडी हैव द पीडीएफ इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आईआईटी जैम का एग्जाम जो होगा वो इस बार ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम रहेगा, ठीक है। और वो तीन घंटे का रहेगा एग्जाम इंग्लिश में। गेट अराउंड 60 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप रहेंगे, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करेगा, कुछ न्यूमेरिकल लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं जो आपके स्टैंडर्ड 12 11 में आप मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड अदर सब टॉपिक्स के रहते हैं, वो भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग विल कवर इट अप इन द रेगुलर बैचेस, जब भी हम भी रहेंगे सारी फैकल्टीज विल डिस्कस वन बाय वन। बहुत ही एक्सटेंसिव वे में हम स्टेप बाय स्टेप और एक बार डिटेल में पढ़ाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 10-15 years कि वी नो in questions को कि which one is important and what to focus on, okay. So this is the overall pattern that section 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ जनरली। तो कुछ मल्टीपल चॉइस 1 नंबर के मार्क्स होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के, इस तरह नेगेटिव मार्किंग और you have no negative marking other things। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, you will have this is available on internet and other IIT JAM की websites में, sorry। तो and like I was talking कि other ways to join other scholarship that you can get are from DST, DBT and DST Inspire also, ठीक है। तो ये स्लाइड इधर होगा। सिलेबस ऑफ योर IIT JAM, ये बेसिकली ओवरऑल आप केमिस्ट्री को हम जब भी डिवाइड करते हैं तो 3 सेक्शन में वी वर्क इट आउट, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली यू हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। तो पूरा सिलेबस जो भी है आपके जो बल्क में डिटेल में दिया हुआ है, आपकी पीडीएफ में शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसको वी कैन कैटेगराइज इन बेसिक थिंग्स। तो वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ दिस यू कैन, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म पे काफ़ी फोकस रहता है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये दो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको कवर करना चाहिए, ठीक है।
तो इससे आपको मोर और लेस सफिशिएंट वे से आंसर कर सकते। फिजिकल केमिस्ट्री अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है इन इस पोर्शन से आता है। तो देर आर सर्टेन मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैट्रिसेस के आएंगे, ग्राफ्स के आएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल केमिस्ट्री आपको थोड़ा मैथ्स का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक मैथ्स का। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके सॉलिड स्टेट, काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक दो क्वेश्चन हर साल हर टॉपिक से फिक्स्ड ही समझिए। जैसे श्री सर ने बताया होगा आपको कि एनसीईआरटी इज द मस्ट फॉर किसी भी एग्जाम में अपने, ठीक है। एनसीईआरटी को तो कवर करना ही करना, उसके अलावा दिस इज नॉट एक्चुअली कंप्लीटली सफिशिएंट, क्योंकि उससे आप 10-15 नंबर के आंसर्स पकड़ सकते हैं। लेकिन जो बीएससी लेवल उससे कई गुना एडवांस हो, तो स्टैंडर्ड 12 तक ही था ना। तो बीएससी लेवल जो है विच इज हायर एडवांस, सेम थिंग आप ये 11-12 में ही पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट भी आप पढ़ते हो, ठीक है, 12th में है ये चैप्टर, ठीक है। बट इन यू ऑल्सो स्टडीड इन बीएससी, ऑल्सो स्टडीड इन एमएससी, रिसर्च में पीएचडी में भी पढ़ाया जाता है इसको। तो अलग अलग बेस से कितना पढ़ना है, कहाँ पर आपको रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे कि विच इज इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक। सॉरी, उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफ़ी आपकी इस बुक से कितना रेफरेंस चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आता है। ऑब्वियसली कि हर किसी को टोटल चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन सिलेक्टेड किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा है, वो चीज़ हम लोग कैटेगराइज, आप सारे लेना, सारे के सारे चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू विल गो नोवेयर। ये बेसिकली केमिस्ट्री को कहा जाता है एक जंगल है, इट्स लाइक थिक फॉरेस्ट, और अगर आपने सही डायरेक्शन में उसको ट्रैवल नहीं किया तो आप खो जाएंगे उस जंगल में। तो इसी तरह खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहा जाता है। तो लेकिन सही डायरेक्शन है, आपको एक मार्गदर्शक, यू नीड अ पाथ की चीज। कई लोग उस पाथ पे चल चुके हैं, रास्ते पगडंडी पहले बनती है, ठीक है। तो उस पगडंडी पे भी चलकर आप जाओगे तो वो आप इजिली क्रॉस कर देंगे। उधर से भटकोगे तो यू विल गेट लॉस्ट इन दैट जंगल। So our way, what we are introducing, what we want to help you out, is find out the right way, or which is there can be multiple ways, right? तो उसमें से कौन सा easier है और कौन सा आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, वो रास्ता हम लोग आपको साथ साथ हम लोग मिलकर will cover it up in this particular course that we are offering. Okay, so let us just move forward. तो IIT JAM का ये है लास्ट ईयर का, देखो कट ऑफ, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि यू डोंट नीड टू स्कोर 100%। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100 नहीं लाना है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी लाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ही केयरफुली लेना है। देखो जनरल कैटेगरी में अराउंड 17 नंबर से कट ऑफ हो गया, ओबीसी में अराउंड 16 आ गया, 15 समथिंग, एससी में यूजुअली इट इज रिलेटेड लेस, एससी में 9। तो यू सी लेस देन 20% या 20 नंबर भी नहीं लाएंगे, लेकिन बट क्वालिफाई। इतना हार्ड होता है एग्जाम, आप देख कर इससे समझ सकते हो कि आपको लग रहा है कि 20 नंबर तो हम ला सकते हैं, लेकिन इट्स रियली टफ। इतना भी नंबर स्कोर नहीं कर सकता। आप 8 से पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़े, 12th में पढ़े, वही चीज़ केमिस्ट्री और सबसे है। उसके बाद उसको क्वालिफाई करते हो, आप ग्रेजुएशन में आए हैं एंड स्टिल वी डू नॉट गेट इट। लोग इतने साल लगा रहे थे पढ़ने में ये केमिस्ट्री को, बट स्टिल इनसफिशिएंट है। यही चीज़ हम लोग बार बार हाईलाइट करना चाहते हैं कि इट्स नॉट इजी, इट्स डेफिनेटली इट्स नॉट इजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। तो हमारा मकसद क्या है कि आपको इतना केपेबल बस बना दे कि ये खाली कट ऑफ नहीं, यू गेट रैंक। तो रैंक आपका 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर तक में अच्छा रैंक आ जाए। टॉप 100 का हमारा एम होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं अपने इस कोचिंग से। वाई? बिकॉज वी आर कीपिंग ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। हम नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स है ना, और जो केपेबल है, वी वांट टू फोकस कि वी हेल्प देम आउट प्रॉपर्ली। जो इंटरेस्टेड है, जिनको एकदम करना ही है, हमको आईआईटी जाना ही है, हम लोग वो चाहते हैं कि वही लोग उन पे फोकस रहेगा हमारा, कि हम उनको इतना केपेबल बना दें कि वो टॉप रैंक लेकर आए, ना सिर्फ क्वालिफाई बट दे वर्क आउट एंड गेट द टॉप रैंक। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड आई थिंक अ फ्यू स्लाइड्स आर गिवन। अदर आईआईटीज जहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन सारे लोग नहीं करते वहाँ पर, ठीक है। So you can get some more information on certain websites, so you can share that up. So why we should join us basically? This question आप लोग के माइंड में आया हुआ जब हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को ऐड किया कि ऐसा क्या है जो बाकी लोग ऑफर नहीं करे। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल है, कोटा में है, आईआईटी जेईई के लिए खासकर सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, यूपीएससी लेवल के लिए है, आईआईटी जैम के लिए गिने चुने कोचिंग से, सारे नहीं है। और
और सब उस लेवल पे नहीं है, क्यों नहीं है, और हम कैसे अलग है जो आपको ऑफरिंग जो दे रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, क्योंकि हम लोग वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस बैच पर्टिकुलर। यू सी द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टी, सारे के सारे PhD होल्डर्स है, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द फेज दैट यू आर ऑलरेडी, किसी भी कोचिंग में कोई गिने चुने हार्डली फैकल्टी कोई PhD होल्डर रहेगा, MSc या BSc लेवल पे क्वालिफाई किया हुआ है, and they directly join and get to the coaching. But we all of us are PhD holders and top rank PhD holders from our respective institutes. You'll get your quality teaching, जो हम लोग भी presentations जो भी आप लोग डिस्कशन करेंगे वो आपको यहाँ पर मार्च में हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल्स हम लोग गैदर करेंगे नॉट ओनली फ्रॉम NCERT बट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बुक्स। आपका जो ये एक्स्ट्रा टाइम जाता है ना, हर किस बुक को रेफर करें, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हजारों बुक्स हैं, मॉरिसन बॉयड ले लीजिए, सोलोमन्स ले लीजिए, फिनाल ले लीजिए, ठीक है, आपके क्लेडन ले लीजिए, सब वेल नोन बुक्स कहा जाती है, ठीक है, स्मिथ है, सारी की सारी आप बुक्स देखो इतनी मोटी मोटी होती है, हजारों पेज की एक एक बुक्स होती है, एक एक वॉल्यूम होती है। तो आपको आप क्या पढ़े, एक बुक को रेफर करेंगे बट कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे बुक से उससे अच्छी आती है। तो ये जो सेलेक्टिव पोर्शन है कि आपको कहाँ पर सर्च करना है, वो पार्ट हम लोग नोट्स के तौर पे बनाकर, और हम लोग इतने सालों एक्स्ट्रा, आप लोग समझो BSc में 2 साल 3 साल में पढ़े, बट वी हैव गैदर्ड अप टू द PhD, सो हर कोई वो सब बुक्स को रेफर कर चुके हैं हम लोग। सो वी नो विच पोर्शन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम विच पर्टिकुलर बुक, जो आपको सबसे अच्छे वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेगा। तो ये चीज़ हम लोग गैदर करके नोट्स के फॉर्म में लाइव क्लासेस में कॉम्पैक्ट बनाकर आपको देंगे कि आपका जो पोर्शन है दैट इज सेल्फ सफिशिएंट, एंड वी आर ट्राइंग टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर नॉर्मल कन्वेंशनल थिंग्स दैट इज ऑफर्ड। तो वो चीज़ रहेगा, आपको वीडियोस मिलेंगी, हर लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, वो आपको गूगल क्लासरूम में हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे, और वेबसाइट पे भी वी आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट टू गेट द एन्क्रिप्टेड वीडियोस। तो अभी करेंटली गूगल क्लासरूम एक बनेगा, वहाँ असाइनमेंट मिलेगा, वहाँ पर वीडियोस मिलेगा आपको, उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज के से क्वेश्चंस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, वहाँ भी आपको डेली अगर आपको कोई डाउट है आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, जब भी आप कुछ क्वेश्चन वर्कआउट कर रहे हैं अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं सेल्फ स्टडी में, कुछ डाउट है तुरंत आप वहाँ पर हम लोग पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम लोग वहाँ पर 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे, जब भी कोई भी फैकल्टी, और we are not only 1 or 2 faculties, there are whole 6 to 7 faculties are there to help you out, ठीक है, सारे के सारे all are very top and experienced people, okay? और सारे PhD holders हैं। और फीस देखो, we have kept the fees for this जितनी कम पॉसिबल हो सकती थी, वी हैव ट्राइड टू वर्क इट आउट, और ये मार्केट में जितने भी अदर कोचिंग्स आप देख लो उनसे कई गुना low already, we have kept discounts we offer the early bird registrations to this, because we do not intend to gain too much as a profit, we want to help you out more or less कि आपको आप क्वालिफाई कर पाओ, एक अच्छा रैंक आप लोग मिलेगी, हम लोग तो ज़्यादा खुशी की बात रहेगी। तो बट वी रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ investment to carry forward all the technical things and other things, so that is what we offered you as a minimum amount of fees of 18,000 है currently discounted offer। इसके अलावा हमारी क्लास की शेड्यूल्स विल वर्क इट आउट फ्लेक्सिबल रहेंगे, जब स्टूडेंट्स को जो बेस्ट पॉसिबल टाइम आप लोग रहेगा उस बेसिस पे हम लोग शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली सैटरडे संडे विल कीप इट, एंड टेक्निकल सपोर्ट में यू गेट ऑल द ऑफर्स, वीडियोज एंड अदर थिंग्स, notes and PDFs, everything. It's okay. So let me just introduce the faculties that we are here that will help you out here. Okay. So this you can find in our website also. You are just constructing the website. तो आपको कल श्रीश सर ने पढ़ाया, श्रीश अग्निहोत्री is an ad hoc faculty in Delhi University currently, और ये इनका भी PhD होल्डर है, और ये अपने CSIR JRF में 30 रैंक लाए थे, तो कल उन्होंने बताया भी होगा आप लोग को। और BHU एंट्रेंस में, DU एंट्रेंस में ही वाज वन ऑफ द टॉप होल्डर्स, टॉप रैंकर्स। IIT जैम में भी उन्हें क्वालिफाई किया, और BHU UIT में इनका फर्स्ट रैंक था, तो BSc BHU की, और मेन एक्सपर्टीज इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनकी लेक्चर आई होप यू एंजॉयड वेरी मच। ये काफ़ी सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, और इसके बाद डॉक्टर आर तिवारी से आप इंटरेक्शन हुई है व्हाट्सएप पे, बट ही हैजंट टेकन द क्लास, ही विल टेक क्लास डेमो लेक्चर ऑन थर्सडे probably. So he is also one of the very top and brilliant people, especially physical chemistry parts in physics और maths के लिए ये expert खास कर है, तो physical chemistry portion ही इनके लिए बहुत easy रहता है। तो he is also one of the top and yes. Sir, integrated
इंटीग्रेटेड एमएससी के क्या आगे स्कोप्स हैं जॉब के? couldn't get you integrated PhD options. यस सर, आगे करियर ऑप्शंस क्या है अगर हम अच्छा। इंटीग्रेटेड एमएससी करें? अच्छा, देखो तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में आपके दो कैटेगरीज है, ठीक है। एक तो एमएससी पार्ट है और एक पीएचडी पार्ट है। तो आपको ये कई सारे इंस्टीट्यूट्स इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी ऑफर करते हैं, आईआईटीज खासकर। तो आपको ये ऑप्शन रहता है कि अगर आप 2 साल में आप दैट यू वांट टू नॉट लीव, ओके, आपको पीएचडी करने का उतना इंटरेस्ट अब रह नहीं गया, ठीक है। स्टार्टिंग में लोग ये सोच के जाते हैं कि हम एमएससी करेंगे, फिर विल टेक अप द पीएचडी पोर्शन, ठीक है। क्योंकि रिसर्च फील्ड कई लोग एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इसके अलावा, बट कंपेयर टू योर जॉब दिस इज वे लेस, दिस इज ओनली सपोर्ट सिस्टम। तो आप फिर भी कई लोग का इंटरेस्ट होता है कि वो एक्चुअल रिसर्च करें, ठीक है। साइंस की फील्ड में रहना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो पीएचडी करना चाहते हैं। तो कन्वेंशनली एमएससी आप 2 साल करोगे, फिर पीएचडी आप करोगे मिनिमम 5 ईयर्स तक, 7 ईयर्स आपको लग जाता है ये पॉइंट के लिए। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी किया तो आपका कम से कम 1 या 2 साल का एडवांटेज आपको बच जाता है, क्योंकि आपको 1 साल प्रोजेक्ट वर्क में देना होता है, सिर्फ 1 साल आपका। और इनका जो कोर्स पैटर्न है वो नॉर्मल यूजीसी सिलेबस से कई गुना अलग रहता है। ये यूएस और फॉरेन यूनिवर्सिटीज की जो कोर्स पैटर्न है उसके बराबर रहता है, ठीक है। तो कंपेयर टू कन्वेंशनल एमएससी जो आप लोग पीजी आप यूनिवर्सिटीज में करते हैं, उससे कई गुना बहुत बेटर एडवांटेज मिल जाते हैं हम लोग को, ठीक है, हम लोग को। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी इसका होल्ड करता है, क्योंकि एक तो जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है कई सारे इंस्टीट्यूशंस में अच्छी जगह पे, और यू गेट द टैग आल्सो फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम आईआईटीज, एंड यू हैव द ऑप्शन कि आपको अगर आपको फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ता है, सीएसआईआर का या डीएसटी इंस्पायर का देकर फिर क्वालिफाई करोगे, फिर इंटरव्यू होगा, तब आप पीएचडी में ज्वाइन करो। उसमें भी आपको चांस है रिजेक्शन का। अगर एक बार एग्जाम दिया है आईआईटी जैम का, उससे आप ज्वाइन कर लो, तो यू हैव एक एग्जाम से आपका रास्ता क्लियर हो गया, आप सीधा फिर पीएचडी तक जाएंगे। तो ये बेनिफिट है आपके इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का। होप इट इज क्लियर, आई थिंक, ठीक है। योर डाउट है तो आप फिर पूछ सकते हो। And furthermore, just to give a briefing of the other faculties, Sandeep Sharma sir ने आपको कल लिया था, he is currently assistant professor SRM, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, और इन्होंने अपना एमएससी भी दिल्ली के किरोड़ी मेडिकल कॉलेज से किया। एंड माई सेल्फ डॉक्टर राजीव, एंड मैंने सीएसआई रैंकिंग पीएचडी के लिए किया है, तो आईआईसी बैंगलोर से मैंने पीएचडी कंप्लीट किया। एंड similar to our profiles of Srish and myself are very much similar. We were actually roommates in BSc, ठीक है। तो and BHU में BHU PET, IIT JAM, IIT UT ये सब हमने क्वालिफाई किया हुआ है, और my expertise in material science and chemistry part. And apart from this, one more faculty जिनका scheduled lecture था, but due to some urgent work she could not carry forward, but will organize certain lectures. She is currently a postdoc in दिल्ली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस, एंड इन्होंने पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। एंड सिमिलर यूजी डीयू एंड बीएचयू में शी इज एन एड हॉक फैकल्टी आल्सो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर फैकल्टी जस्ट ऑन यस्टरडे आपका क्लास में डॉक्टर विजय सिंह, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और उनका एक्सपर्टीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दिस इज आवर बेसिक टीम दैट सारे के सारे आप देख लो, सब के सब को टॉप लेवल एग्जामिनेशंस क्वालिफाइड किए हुए हैं। सो यू विल गेट योर क्वालिटी, जो एग्जाम क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी और टिप्स होती है, हर कोई इसमें कैपेबल है आपको वो देने के लिए। तो लेकिन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द पीएचडी, वी हैव एन एक्सपर्टीज इन सर्टेन फील्ड, जो उससे भी एडवांस लेवल पे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी आप लोग को हेल्प आउट कर सकते हैं सॉल्व करने में। सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर जो हमने अभी शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। सो बेसिकली पर ईयर फीस 20,000 है, बट फॉर द अर्ली, बिकॉज दिस अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफर, वी आर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट टू यू. So the fees currently is 18,000 per annum. So we'll suggest that you complete the registration, for which you require only 1,000 for time being to book your seats, because we are only offering limited number of seats, as Raju has been constantly telling. So 1,000 से आप registration confirm कर लो, and then later you take some time, say 1 week, and जब हमारी regular classes start होंगी, then submit the remaining amount of fees depending on your situation which you are capable. We are
basically will be very flexible for each of one of you. Okay, so I think compared to other coachings and other things, we already offer a substantially low fees for this particular course that you are offering. तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस में डाउट्स क्लियरेंस एवरीथिंग मिलेगा, वीडियोस जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, कंसिस्टेंटली असाइनमेंट्स मिलेंगी, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चंस, इसके अलावा और भी कुछ सपोर्ट है, फिर आपको मेंटल, आपको कुछ मोटिवेशनल कभी सपोर्ट चाहिए, कई लोगों को होता है ना, बेसिकली मोटिवेशनल है कि साइन वेव, आई ऑलवेज टॉक लाइक दिस, ठीक है, तो कभी मोटिवेशन आपका हाई रहेगा, कभी डाउन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन फैमिली सिचुएशन, करंट पीयर प्रेशर, एग्जाम सिचुएशन, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को कॉन्स्टेंटली विल रिक्वायर दिस काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो, तो वो सब हम लोग हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो मेन आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो है कि स्ट्रैटेजी एक अपनाना, क्योंकि देखो टाइम लिमिट होता है एग्जाम में, 3 घंटे का टाइम दिया है, 100 क्वेश्चन दिए हैं, और उसमें से भी आपको उसमें टिपिकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ट्रिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या स्ट्रैटेजी मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, एक नंबर भी आपको रैंक्स में बहुत पीछे कर सकता है, वो आपको डिसाइड भी कर सकता है, एक भी क्या 0.25 0.1 नंबर से भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते और क्वालिफाई कर सकते, इस बीच में अंतर होता है। तो वो जो 0.1 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने के लिए जो फंडा यूज करना है, ट्रिक्स यूज करना है, वो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का, और कई सारे क्वेश्चंस के कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, टाइम आपको सेव करना है, करेक्ट भी आंसर लाना है, वो चीज़ विल हेल्प यू आउट। ओके, सो ये तो था आईटी जैम का जो भी डिस्कशन, लेकिन यही जो हम लोग कोर्स में अभी डिस्कस करेंगे जो भी रेगुलर बैचेस में, ये आपको हेल्प करेगा और अदर एग्जाम्स के लिए भी, जैसे केवीपीओआई एग्जाम है, जिस कई लोगों को नहीं पता केवीपीओआई होता है क्या, ये आपको अभी मैं एक जस्ट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट शेयर समथिंग एल्स हियर विद यू, ये है केवीपीओआई एग्जाम, आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ, ठीक है। तो केवीपीओ एग्जाम का फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, और इसका डेट आज अनाउंस हो गया है इस साल का 6 सितंबर 2020, ठीक है। तो जस्ट लाइक इसकी, और ये 5 अक्टूबर तक आप उसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। केवीपीओआई का है, तो यू आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टेक दिस अप, आप इस लिंक पे जाकर यू कैन शेयर इट। तो इसमें 3 कैटेगरी में आप ये आईएससी से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का अपना एक एग्जाम है, और इसका बेनिफिट यह है कि आपको यहाँ भी फेलोशिप मिलती है, अपार्ट फ्रॉम आईआईटी जेईई आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं। तो देयर 3 वेज बाय विच यू कैन एक्चुअली टेक अप दिस फेलोशिप, ठीक है। एक है एससी कैटेगरी, एसएक्स एंड एसबी। तो आपके लिए, क्योंकि आप ये एग्जाम हम 12th में दे सकते हैं, बीएससी में दे सकते हैं, और एमएससी शायद एमएससी में भी दे सकते हैं। तो आपके लिए ऐसी कैटेगरी है जो आपके बीएससी लेवल के लिए चाहिए, तो ऐसी कैटेगरी में एंड अदर हर सब्जेक्ट के लिए एक होता है, तो यू हैव फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। तो ये देखिए केमिस्ट्री है, एमएससी एंड इंटीग्रेटेड एमएससी हो या एमएससी बीएससी, ये सबसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए यू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। आप सेकेंड ईयर में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरिंग फर्स्ट टू थर्ड ईयर ऑफ बीएससी आपको मिलता है स्टाइपेंड 5,000 का स्टाइपेंड, और अलग से 20,000 हर महीने का। और अगर एमएससी में ज्वाइन करेंगे, अगर आप केवीपीओआई आईएससी में ज्वाइन कर रहे हैं इसके थ्रू, तो ये आपको 7,000 पर मंथ अलग से देगा। तो ये आईआईटी एग्जाम के अलावा दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपको एक्चुअली कई लोगों को नहीं पता ये होता है, ठीक है। तो बट आई एम सजेस्टिंग यू टेक दिस अप। एग्जाम का डेट आ गया है, अनाउंस करके आप भर देगा। तो केवीपीओआई एग्जाम के लिए भी जो भी कोर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं ये बहुत ही रेलेवेंट रहेगा, जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, यू कैन टेक दिस वन, दिस आल्सो फेलोशिप एग्जाम। इसके अलावा अदर एंट्रेंस एग्जाम्स बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इन सब के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम अपने से कंडक्ट होते हैं, उसमें कर सकते हैं। टीएफआर का एक एग्जाम होता है विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट एंड टफेस्ट एग्जाम्स, ये इससे भी आईआईटी एग्जाम से भी टफ होता है, तो उसके लिए भी विल हेल्प यू आउट, विल प्रिपेयर यू ऑल द मोर, ओके, ठीक है। तो ये है बेनिफिट। तो हमने एडमिशन फॉर्म शेयर किया, आप जस्ट गो टू द या पीडीएफ वर्जन या वर्ड वर्जन, आप अपने कुछ लोगों ने इसे ऑलरेडी फिल अप करके रजिस्टर कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया आई सजेस्ट यू बी अश्योर्ड ऑफ आवर कैपेबिलिटीज, विल हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो आप एडमिशन फॉर्म तुरंत से तुरंत भरकर इसको शेयर अप कर लीजिए। सो दिस विल बी टेंटेटिव शेड्यूल फॉर अस व्हाट वी आर प्लानिंग राइट नाउ, कि सैटरडे हम 2 क्लास लेंगे, संडे भी 2 क्लास, तो मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन योर जो कन्वेंशनल आपकी कंफर्टेबल आप किस टाइमिंग पर रहेंगे, हम लोग रहेंगे
इसको मूव कर सकते हैं. सो अबाउट क्योंकि लास्ट yesterday 3 क्लासेस 1.5 घंटे की 1.5 घंटे की टू मच. So at the most either 1 class or 2 class is possible at continuously. ठीक है, तो we'll keep a certain flexible time based on the input that you will be giving. Okay. So अभी तो ये तो मोर और लेस हमारा जो डिस्कशन था आईटी जैम का पैटर्न और जो भी मार्किंग सिस्टम, आप लोग का क्लैरिफिकेशन के लिए मैं जानबूझ कर ये पर्टिकुलर सेशन लिया है कि आप लोग को स्टार्टिंग में ही इंफॉर्मेशन हो जाए कि हो आप लोग किस कोर्स स्ट्रक्चर के लिए जो जा रहे हैं वो क्या है, एग्जाम क्या है इसके बारे में. तो वी आर सपोज टू टेक अप दिस पर्टिकुलर लेक्चर फॉर द केमिकल बॉन्डिंग. तो सबसे पहले सिलेबस यहाँ पर मैं पुट अप कर देता हूँ, तो हम लोग अब उसकी तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा. बट आई नॉट गो इन डिटेल फॉर टाइम बीइंग बिकॉज ये एक वास्ट चैप्टर है. आप इमीडिएट इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए विल टेक अप स्टेप बाय स्टेप इन द रेगुलर बैचेस. इसलिए मैं आज बस थोड़ा बेसिक थोड़ा वर्कआउट कर देंगे एट द मोस्ट कि आपको थोड़ा टच अप करेगा. मोर मेरा फोकस आज था आपको एटलीस्ट बी फेमिलियर विद व्हाट यू आर गेटिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग में यू हैव ऑलरेडी सीन कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज होते हैं. ठीक है, तो बॉन्डिंग अलग अलग नेचर के होते हैं, ये आपको पढ़ना है. ये सिलेबस मैंने लिस्ट डाउन किया है आईटी जैम के वेब पेज से. तो वेस्टर्न थ्योरी ऑलरेडी आपको कवर किया है कल काफी डिटेल में श्रीस्टर ने विद ऑलरेडी ऑल डिस्कशंस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो आई होप दिस पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड फॉर यू. तो ये पार्ट वेस्टर्न थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस पोर्शन I hope nobody has any doubt, and in case you have, we'll again cover it up with certain questions. यहाँ से फिर hybridization की बात होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट आ जाता है. देन डायपोल मोमेंट, आयनिक सॉलिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, CCl, ये सब. तो इन सब का है. और ये पोर्शन आप खास कर ये देखो, आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ये आपका मैच करता है दूसरे पोर्शन के साथ. तो केमिकल बॉन्डिंग का खासकर ऐसा जो सिलेबस है, दिस ओवरलैप्स विद अदर टॉपिक्स जो लिस्ट डाउन किया गया सिलेबस में. फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग में यू हैव योर वेस्पर थ्योरी. ये अभी मैं जस्ट आई विल स्टार्ट न्यू शेयर फॉर द व्हाइट बोर्ड. जस्ट होल्ड ऑन. Okay, so in chemical bonding you have portions that are covering the different theories that you are all that you require information. इस एक तो आपका वेस्पर थ्योरी होता है. ठीक है, इसके बाद आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ये आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 11th 12th में 11th में आप लोग का ये स्कूल लेवल पे भी किया है, एनसीईआरटी में भी अच्छे से वर्कआउट किया. इसके अलावा आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आप लोग बीएससी में काफ़ी लोग बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में भी पढ़ाया जाता है. ठीक है, और इसको हम लोग रिसर्च में पीएचडी में भी पढ़ते हैं. इसके बाद इसके पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के भी पहले यू कम अक्रॉस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, तो ये होता है, ये भी आपको सेम थिंग पढ़ाया जाता है. ठीक है, एमओटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो वेस्पर का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी. ठीक है, ये आपको कल सेशन ने ऑलरेडी काफ़ी एडवांस तरीके से वर्कआउट किया. फिर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो लाइनस पॉलिंग ने 1932 में दिया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, आई होप माय हैंडराइटिंग इज इट इज नॉट लेजिबल टू यू. आई कैन जस्ट बी अ लिटिल स्लो हियर. एक आता है ये, इसके बाद है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग स्टैंडर्ड 12 में भी पढ़ाया जाता है. स्टैंडर्ड 12th में 11th 12th. ये हम सीबीएसई सिलेबस की तरफ से मैं कह रहा हूँ स्कूल लेवल पे. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक होता है जो एक आप लोग इसमें भी पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में. और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, तो ये सब जो थ्योरीज हैं. इसके अलावा अब थोड़ा जब एमएससी में अब आ जाते हैं आप, तो या बीएससी में भी खासकर कुछ जगह सिलेबस रहता है, उसमें एक आ जाता है लिगेंड एलएफटी. ये है लिगेंड फील्ड थ्योरी. तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीएफटी एंड एमओटी का मिक्सचर है. तो ये पार्ट थोड़ा एडवांस हो जाता है. तो आई होप दिस पार्ट इज नॉट एग्जैक्टली कंसर्निंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ आईआईटी जैम का सिलेबस के लिए.
आपके लिए ये जो पोर्शन है वेस्पर थ्योरी जो कवर अप किया गया है 1 2 3 4 दिस इज व्हाट counts it into your syllabus for your IIT JAM. Okay, so when you look into this other portion of the syllabus, I hope it is now visible. तो ट्रांजिशन मेटल्स का जो पार्ट है सिलेबस में उसमें आप देखो यहाँ आ जाता है फिर से वैलेंस बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जो आप केमिकल बॉन्डिंग में जिसकी जरूरत है जो थ्योरीज की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी कई सारी चीज एक्सप्लेनेशन खासकर ये आपको जरूरत है इसमें। तो ओवरलैपिंग पोर्शन रहता है। तो जो स्ट्रैटेजी है इस पर्टिकुलर थिंग को पढ़ने का हाइब्रिडेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेने के बाद यू एक्चुअली मूव ऑन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डायरेक्टली आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े। साथ साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जब डिस्कशन होगा तो उसमें वी ओवरलैप विद सर्टेन पोर्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड अदर थिंग्स। ओके, तो ये तो एंड वी हैव टू मूव साइमल्टेनियसली। तो आपको एक ही टाइम में आप दोनों चीज के साथ रेलेवेंट आपको आ जाएगा। तो दिस पोर्शन स्पेशली deep local elements is very crucial for your IIT exam. So this in fact all entrance exams, so this is also very important। and you see solid state वाला portion physical chemistry वहाँ भी ये चीज फिर overlap करता है crystal structure NaCl KCl and other things। so यहाँ पे जो आपको requirement थी पिछले वाले कि structure NaCl CCl, तो there are certain things की एक chapter, ठीक है, एक चैप्टर जो आपको एक तरफ लिस्टेड ऑन इनऑर्गेनिक वे दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द अदर पोर्शन। सो दिस बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज जो आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं क्लास 12 में दैट इज आल्सो कवर्ड इन योर बीएससी, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन एमएससी एंड अगेन इन पीएचडी समटाइम्स। फॉर एग्जांपल आप केमिकल बॉन्ड्स के कोवेलेंट बॉन्डिंग की ही बात कर लें, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स तो आप यहाँ भी पढ़ोगे 12th में कुछ लेवल। अब सब जगह इसमें चाहिए। और पीएचडी में बीएफटी के एक पोर्शन है जो आप लोग थ्योरेटिकल वर्क करते हैं वहाँ पे चलेगा। लेकिन अब पॉइंट आ रहा है कि हमें कितना पढ़ना है, हाउ मच यू रिक्वायर, क्योंकि ये एक ही चीज़ को हम अलग अलग लेवल्स पे पढ़ा सकते हैं। सो वेयर यू नीड टू स्टॉप एंड वेयर यू हाउ मच इज रेलिवेंट फॉर यू, वो पार्ट आपको जानना है। क्योंकि और यही चीज़ हम लोग थोड़ा इसको जो हमारे नोट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग बिल्डअप करेंगे उसमें से हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हाउ मच इज सफिशिएंट फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सॉल्व द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर चाहिए, आपको न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए इतना चाहिए कि दैट शुड बी सफिशिएंट थ्योरी। ठीक है, तो ये पोर्शन हम लोग रेगुलर क्लास में विल कवर इट अप। प्लीज टेल मी। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड्स guys, can you please unmute yourself, Rajita? I think fine. So in chemical bonds, basically the whole relevance is through different aspects. Basically, you have ionic bond, you have covalent bonds, you have metal bond, metallic, okay? और इसके अलावा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारा एम जो रहेगा स्ट्रैटेजी पढ़ने का वो रहेगा कि एक एक स्ट्रक्चर पहले बॉन्ड्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको डिटेल में हम लोग इसको वर्कआउट करें कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ देम। ठीक है, और फिर केमिकल बॉन्ड्स जो खासकर इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड को कवर करेंगे, फिर मेटलिक बॉन्ड को देखेंगे, और then we'll move to the covalent bond. Why we are moving here? Because this portion is especially important, क्योंकि आगे के फोर्थ कमिंग पार्ट में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसी में आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कंसर्न है, आपको एमओटी से भी इसके रेलेवेंस आ जाता है। फिर आप जब सीएफटी की बात करेंगे जहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए और केमिकल बॉन्ड का मिक्सचर है, तो यू नीड द नॉलेज ऑफ बोथ कोवलेंट बॉन्डिंग as well as ionic bonding here. So ये portion specifically will cover it up in the एक step by step we have to take this up. तो इसके साथ साथ फिर coordinate bonds जब बात करेंगे तो we need
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन जरूरी नहीं है कि एक बार में ही कंप्लीट होगा, तो इसको हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है और कोरिलेट करते हुए चलना है ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड वेस्पर थ्योरी, वो पोर्शन आपका हो गया है बाय Sridhar, बट इफ यू रिक्वायर यू कैन अगेन हैव अनदर रेगुलर लेक्चर। ओके, तो ये तो हमारा ये हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा जो रेगुलर क्लास में विल स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन। ठीक है, तो अभी के लिए आई एम जस्ट कीपिंग अ टेंटेटिव आइडिया स्ट्रैटेजी, हमारा फ्लो ऑफ द क्लास क्या है ना ये। तो इसके अलावा न्यूमेरिकल्स एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपके क्वेश्चन में, और खाली न्यूमेरिकल्स आपको बीएससी लेवल पे नहीं, स्टैंडर्ड 11-12 के लेवल पे भी रहते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट। तो एक अलग हम लोग मे बी अ फ्यू क्लासेस विल रेगुलरली ट्राई एंड सॉल्व आउट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्सेज, और अदर टॉपिक से भी विल ट्राई एंड वर्क आउट। तो ये एक स्पेशल पोर्शन हम रखेंगे विच इज विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर कन्वेंशनल क्लास में आप जो पढ़ाई करेंगे। उनके अलावा हम ये एंट्रेंस या टेस्ट सीरीज टाइप का या जो रहेगा, जो पोर्शन हमारा हम ट्राई करेंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से क्लास के लिए डिवोट किया करेंगे। So this will be the flow that we will work out in the coaching lecture. So for time being, I'm not moving forward to each detailed version. I hope whatever we have discussed, आप लोग clarify हो गया होगा कि what we are offering in this particular courses, and I hope we look forward to see you joining and enjoying our particular lectures. So Thursday probably we'll just keep the link posted. Rajesh sir will take up a certain portion. So purposefully, we are not dealing with too much of information in particular demo lectures. We have to again discuss it in the regular classes. So I hope you have got the essence of what information, what we are actually offering for you, and we assure you कि आप लोग एक अच्छा टॉप रैंक लेकर आएंगे, हमारे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे सब लोग साथ में। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को, and we look forward to Rahul, Kanishka, and whoever will be joining us further in the regular batch. Okay, so Saturdays proper will be dealing in topic-wise discussions. Okay, any doubts you can just ask me, which be relevant question. No, sir. Okay, fine. So yeah, thank you for your time, and looking forward for you joining the classes. Okay, bye. Take care.